اسلامک شارٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ 28 جمادی الاول 13 ہجری کو مجاہدین نے روزمرہ کی طرح فجر کی نماز باجماعت پڑھی۔ سب نے گڑ گڑا کر بڑے ہی جذباتی انداز میں دعائیں مانگی۔ بہت سے ایسے تھے جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان میں سے نہ جانے کس کس کی یہ آخری نماز تھی۔ نماز کے فوراً بعد انہیں اپنے دستوں کے ساتھ ان جگہوں پر چلے جانا تھا جو ان کے لیے گزشتہ رات مقرر کی گئی تھی۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر اپنی جگہوں پر پہنچ چکا تھا۔ رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی اتنی زیادہ تعداد کے بلبوتے پر اتنا پھیل جائیں گے کہ مسلمان اتنا پھیلے تو ان کی صفوں میں شگاف پڑ جائیں گے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے تعداد کی قلت کے باوجود محاذ 5 میل لمبا بنا دیا۔ اس سے یہ خطرہ کم ہو گیا کہ رومی پہلوؤں میں جا کر یا پہلوؤں سے عقب میں جا کر حملہ کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دوسری دانش مندی یہ کی کہ اپنے لشکر کا منہ مغرب کی طرف رکھا تاکہ سورج ان کے پیچھے اور رومیوں کے سامنے رہے اور وہ آنکھوں میں سورج کی چمک پڑنے کی وجہ سے آنکھوں کو کھول نہ سکے۔ حسب معمول خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک پہلو کے دستوں کے سالار سعید بن عامر تھے، دوسرے کے امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن اور قلب کی کمان معاذ بن جبل کے پاس تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دونوں پہلوؤں کے دستوں کی حفاظت کے لیے یا مشکل کے وقت ان کی مدد کو پہنچنے کا یہ اہتمام کیا تھا کہ ان دستوں کے آگے ایک ایک دستہ کھڑا کر دیا تھا۔ 4000 نفری جس کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے، خالد رضی اللہ عنہ نے قلب کے عقب میں محفوظہ یعنی ریزرو کے طور پر رکھ لی۔ وہاں اس نفری کی موجودگی اس لیے بھی ضروری تھی کہ وہاں عورتیں اور بچے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالاری کے رتبے کے افراد کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ مقصد یہ تھا کہ جہاں کہیں سالار کی ضرورت پڑے ان میں سے ایک کو وہاں بھیج دیا جائے۔ یہ چاروں بڑے قابل اور تجربہ کار سالار تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ، عمر بن العاص، زرار بن الازور اور رافع بن عمیرہ۔ سورج طلوع ہوا تو رومی سنتریوں نے اپنے سالاروں کو اطلاع دی کہ مسلمان جنگی ترتیب میں تیار ہو گئے ہیں۔ رومیوں کے اجتماع میں ہڑبونگ مچ گئی۔ ان کا خدشہ بچا تھا کہ مسلمان حملہ کر دیں گے۔ رومی سالاروں نے بڑی تیزی سے اپنے لشکر کو تیار کیا اور مسلمانوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان فاصلہ تقریباً 4 فرلانگ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے محاذ کو کم و بیش 5 میل لمبا کر دیا۔ رومی اپنے لشکر کو اس سے زیادہ پھیلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے محاذ کی لمبائی تقریباً اتنی ہی رکھی جتنی خالد رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی۔ اس سے خالد رضی اللہ عنہ کا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ رومی مسلمانوں کے پہلوؤں کے لیے خطرہ نہ بن سکے، لیکن رومی لشکر کی گہرائی زیادہ بلکہ بہت زیادہ تھی۔ دستوں کے پیچھے دستے اور ان کے پیچھے دستے تھے۔ مسلمانوں کے لیے ان کی صفیں توڑنا تقریباً ناممکن تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومیوں کا لشکر جب اس ترتیب میں آیا تو دیکھنے والوں پر ہیبت طاری کرتا تھا۔ بہت سی صلیبیں جن میں کچھ بڑی اور کچھ ذرا چھوٹی تھیں اس لشکر میں سے اوپر کو ابھری ہوئی تھیں اور کئی رنگوں کے جھنڈے اوپر کو اٹھے ہوئے لہرا رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج نہایت معمولی اور بے روپ سی لگتی تھی۔ رومیوں کا سالار وردان اور سالار قبقلار اپنے لشکر کے قلب کے سامنے گھوڑوں پر سوار کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے محافظوں کا ایک دستہ تھا جو لباس وغیرہ سے بڑی شان والے لگتے تھے۔ رومیوں کی تعداد اور ان کے ظاہری جاہو جلال کو دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے مجاہدین پر رومیوں کا ایسا اثر ہو سکتا ہے کہ ان کا جذبہ ذرا کمزور ہو جائے۔ شاید اسی لیے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے کا رخ اپنی فوج کے ایک سرے کی طرف کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے اپنا محاذ اتنا زیادہ پھیلایا تھا۔ انہوں نے گھوڑا ایک پہلو کے دستے کے سامنے جا روکا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک ہاتھ اور اس ہاتھ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے انتہائی بلند آواز سے کہا، یاد رکھنا کہ تم اللہ کے نام پر لڑنے آئے ہو جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے۔ اللہ کسی اور طریقے سے بھی اپنی دی ہوئی زندگی تم سے واپس لے سکتا ہے۔ اللہ نے تمہارے ساتھ ایک رشتہ قائم کر رکھا ہے۔ کیا یہ اچھا نہیں کہ تم اللہ کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دو؟ اللہ اس کا اجر دے گا۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے کہ تم تھوڑے تھے اور تمہارا مقابلہ اس دشمن سے ہوا جو تم سے 2 گنا اور 3 گنا تھا، اور اتنا طاقتور دشمن تمہاری ضرب سے اس طرح بھاگا جس طرح بکری شیر کو اور بھیڑ بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگتی ہے۔ رومیوں کی ظاہری شان و شوکت کو نہ دیکھو، شان و شوکت ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ جاہو جلال ان کا ہے جن کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آج اپنے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साबित कर दो कि तुम बातिल के पहाड़ों को रेजा रेजा करने वाले हो। ये तो जज्बाती बातें थी जो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने की और उनका असर वही हुआ जो होना चाहिए था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन बातों के अलावा कुछ हिदायत दी। मौरिखों ने उनके सही अल्फाज लिखे हैं। उन्होंने कहा, जब आगे बढ़कर हमला करो तो मिलकर दुश्मन पर दबाव डालो, जैसे एक दीवार बढ़ रही हो। जब तीर चलाओ तो सबके तीर इकट्ठे कमानों से निकलें और दुश्मन पर बौछार की तरह गिरें। दुश्मन को अपने साथ बहा ले जाओ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम दस्तों के सामने रुके और यही अल्फाज कहे। उसके बाद वो अक़ब में औरतों के पास चले गए। बोले, दुआ करती रहो अपने खावंदों के लिए, अपने भाइयों और बापों के लिए। तुम देख रही हो कि दुश्मन की तादाद कितनी ज्यादा है और हम कितने थोड़े हैं। ऐसा हो सकता है कि दुश्मन हमारी सफों को तोड़कर पीछे आ जाए। खुदा की कसम, मुझे पूरी उम्मीद है कि अपनी इज्जत और अपनी जानें बचाने के लिए तुम मर्दों की तरह लड़ोगी। हम उन्हें तुम तक पहुंचने नहीं देंगे, लेकिन वो सब कुछ हो सकता है जो हम नहीं चाहते कि हो जाए। एक औरत ने कहा, वलीद के बेटे, क्या वजह है कि हमें आगे जाकर लड़ने की इजाजत नहीं? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मर्द जिंदा हो तो औरत क्यों लड़े, और अपने आप को बचाने के लिए लड़ना तुम पर फर्ज है, और तुम पर फर्ज है कि मर्द थोड़े रह जाएं। दुश्मन गालिब आ रहा हो तो आगे बढ़ो और मर्दों की तरह लड़ो और अपने ऊपर गैर मर्द का गलबा कबूल न करो। ये पहला मौका था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने औरतों को भी दुश्मन से खबरदार किया और उन्हें अपने दिफा में लड़ने के लिए तैयार किया। इससे जाहिर होता है कि उन्हें खासी तशवीश थी। उन्होंने किसरा की फौजों को शिकस्त पे शिकस्त दी थी, लेकिन रूमी फारसियों की निस्बत ज्यादा मुनज़्ज़म और ताकतवर थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने यकीनन ये पहलू भी होगा कि मुजाहिदीन को घरों से निकले खासा अरसा हो चुका था और वो मुसलसल लड़ाइयों के थके हुए भी थे। उन्हें अपने अल्लाह पर, अल्लाह की दी हुई रूहानी ताकतों पर और ईमान पर भरोसा था। दोनों फौजें लड़ाई के लिए तैयार हो गईं। रूमियों की तरफ से एक मुअम्मर पादरी आगे आया और मुसलमानों से कुछ दूर आकर रुक गया। उसने बुलंद आवाज से कहा, ऐ मुसलमानों, तुम में कोई ऐसा है जो मेरे पास आकर बात करे? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घोड़े की लगाम को हल्का सा झटका दिया और पादरी के सामने जा घोड़ा रुका। बूढ़े पादरी ने कहा, तुम सालार हो? क्या तुम में कोई मुझ जैसा मजहबी पेशवा नहीं? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, नहीं, हमारे साथ कोई मजहबी पेशवा नहीं होता, सालार ही इमाम होता है। मैं सिपा सालार हूँ और मैं मोअज़्ज़ज़ पादरी को ये भी बता देता हूँ कि मैं उस वक्त तक सिपा सालार रहूंगा जब तक मेरी कौम और मेरी फौज चाहेगी। अगर मैं अपने अल्लाह वहदहू ला शरीक के अहकाम और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से इन्हिराफ करूंगा तो मुझे सिपाह सालार नहीं रहने दिया जाएगा। अगर इस हालत में भी सिपाह सालार रहूंगा तो सिपाहियों को हक हासिल है कि वो मेरा कोई हुक्म न माने। मौरिख लिखते हैं कि मुअम्मर पादरी पर खामोशी तारी हो गई और वो कुछ देर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुंह की तरफ देखता रहा। पादरी ने जरा दबी जबान में कहा, यही वजह हो सकती है कि फतह हमेशा तुम्हारी होती है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, वो बात कर पादरी जो तू करने आया है। पादरी ने जैसे बेदार होकर कहा, हाँ, ऐ अरब से फतह की उम्मीद लेकर आने वाले, क्या तू नहीं जानता कि जिस जमीन पर तू फौज लेकर आया है उस पर किसी बादशाह को कभी पांव रखने की जरूरत नहीं हुई। तू अपने आप को क्या समझकर यहाँ आ गया है? फारसी आए थे लेकिन उन पर ऐसी दहशत तारी हुई कि भाग गए। कई दूसरे भी आए थे, वो बड़ी बहादुरी से लड़े लेकिन नाकामी और मायूसी के सिवा उन्हें कुछ हासिल न हुआ और वो चले गए। तुझे हमारे खिलाफ कुछ कामयाबियां हासिल हुई हैं, लेकिन जो ख्याल दिमाग से निकाल दे कि हर मैदान में तू ही फतह पाएगा। मौरिखों के मुताबिक खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खामोशी से सुन रहे थे और बूढ़ा पादरी पुरअसर लहजे में बोल रहा था। वो कह रहा था, मेरा सिपाह सालार वरदान जो मेरा आका है तुझ पर करम और नवाजिश करना चाहता है। इससे बड़ी नवाजिश और क्या होगी कि उसने तेरी फौज को काट देने की बजाय मुझे ये पैगाम देकर तेरे पास भेजा है कि अपनी फौज को हमारे मुल्क से वापस ले जा। मेरा आका तेरे हर सिपाही को 1 दीनार, 1 कुबा और 1 इमामा देगा और तुझे 100 इमामे, 100 कुबाएं और 100 दीनार अता करेगा। तेरे लिए ये फयाजी मामूली नहीं। क्या तू नहीं देख रहा कि हमारा लश्कर रेत के जर्रों की तरह बेहिसाब है? तू जिन फौजों से लड़ चुका है, हमारी फौज उन फौजों जैसी नहीं। तू नहीं जानता कि उस फौज पर कैसर रूम का हाथ है। उसने मंझे हुए तजर्बाकार सालार और चोटी के पादरी इस फौज को दिए हैं। बोल, तेरा क्या जवाब है? इनाम चाहता है या अपनी और अपनी फौज की तबाही? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, 2 में से 1। मेरी 2 शर्तों में से 1 पूरी कर दो तो मैं अपनी फौज को लेकर चला जाऊंगा। अपने आका से कहो कि इस्लाम कबूल कर लो या जिजिया अदा करो। अगर नहीं तो हमारी तलवारें फैसला करेंगी। मैं तेरे आका के कहने पर वापस नहीं जाऊंगा। तेरे आका ने जो दीनार, कुबाएं और इमामे पेश किए हैं वो तो हम वसूल कर ही लेंगे।
पादरी बोला, एक बार फिर सोच अरबी सालार। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अरब के सालार ने सोचकर जवाब दिया है, जा अपने आका तक मेरा जवाब पहुंचा दे। बूढ़े पादरी ने रूमी सिपाह सालार वरदान को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब दिया। वरदान ने गुस्से से फटते हुए कहा, अरब के डाकुओं की ये जुर्रत, क्या वो नहीं जानते कि मैं उन सबको एक ही हल्ले में खत्म कर सकता हूँ। उसने अपनी सिपाह की तरफ घोड़ा घुमाकर हुक्म दिया, तीरंदाज आगे आ जाएं और इन बदबख्तों को फनाह करने के लिए तैयार हो जाएं। फलाखिन भी आगे ले आओ। तीरंदाज आगे आ गए तो मुसलमानों के कल्ब के सालार माज बिन जबल ने अपने दस्तों को हमले की तैयारी का हुक्म दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ठहर जा इब्ने जबल, जब तक मैं न कहूँ हमला न करना। सूरज सर पर आकर आगे जाने लगेगा तो हम हमला करेंगे। माज बिन जबल ने कहा, इब्ने वलीद, क्या तू नहीं देख रहा कि उनकी कमानें हमसे अच्छी और बड़ी हैं, जो बहुत दूर तक तीर फेंक सकती हैं। वो हमारे तीरंदाजों की इज्जत से दूर हैं। मैं इन तीरंदाजों पर हमला करके इन्हें बेकार करना चाहता हूँ। उनके फलाखिन देखो, ये पत्थर बरसाएंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, रूमी तरतीब में खड़े हैं, हमने हमले में पहल की तो हमें पसपा होना पड़ेगा। उनकी तरतीब जरा उखड़ने दो, उनका कोई न कोई कमजोर पहलू हमारे सामने आ जाएगा। रूमियों ने कुछ देर इंतजार किया। मुसलमानों ने कोई हरकत न की तो वरदान के हुक्म पर उसके तीरंदाजों ने तीरों की बौछारें फेंकनी शुरू कर दी और फलाखिन से वो पत्थर फेंकने लगे। कई मुसलमान शहीद और जख्मी हो गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये नुकसान देखकर भी हमले का हुक्म न दिया। रूमी तीरंदाजों को तीरों से मौसर जवाब नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि मुसलमानों की कमानें निस्बतन छोटी होने की वजह से दूर तक तीर नहीं फेंक सकती थी। उधर से तीर और पत्थर आ रहे थे। तब मुसलमानों में हिजान और इस्तराब नजर आने लगा। वो हमला करना चाहते थे लेकिन उन्हें हुक्म नहीं मिल रहा था। सालार ज़र्रार बिन अल अज़वर दौड़े दौड़े खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए। ज़र्रार ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, इब्ने वलीद, तू क्या सोच रहा है? क्या तू दुश्मन को ये बताना चाहता है कि हम उससे डर गए हैं? अगर अल्लाह हमारे साथ है तो मत सोच, हमले का हुक्म दे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। ये इत्मीनान और सुकून की मुस्कुराहट थी। उनके सालार और सिपाही पसपाई की बजाय हमले की इजाजत मांग रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इब्ने अल अज़वर, तू आगे जाकर दुश्मन को मुकाबले के लिए ललकार सकता है। ज़र्रार ने ज़र्रा और खोद पहन रखी थी। उनके एक हाथ में चमड़े की ढाल थी और दूसरे हाथ में तलवार। उन्होंने पिछले एक मार्के में ये ढाल एक रूमी से छीनी थी। ज़र्रार आगे गए तो रूमी तीरंदाजों ने अपने सालार के हुक्म से कमाने नीचे कर ली। ये उस जमाने का रिवाज था कि फौजों की लड़ाई से पहले दोनों फौजों में से किसी एक आदमी अपने दुश्मन को इनफिरादी मुकाबले के लिए ललकारता। उधर से एक आदमी आगे आता और दोनों जिंदगी और मौत का मार्का लड़ते। उसके बाद जंग शुरू होती। मुकाबले के लिए ललकारने वाला अपने दुश्मन को तौहीन आमेज बातें कहता। ज़र्रार बिन अल अज़वर रूमियों के सामने गए और उन्हें ललकारा, मैं सफेद चमड़ी वालों के लिए मौत का पैगाम लाया हूँ। रोमियो, मैं तुम्हारा कातिल हूँ। मैं खुदा का कहर बनकर तुम पर गिरूंगा। मेरा नाम ज़र्रार बिन अल अज़वर है। रूमियों की तरफ से ज़र्रार के मुकाबले के लिए एक आदमी आना था, लेकिन 4-5 रूमी सवार आगे आ गए। ज़र्रार ने पहले अपनी खौद उतारी, फिर ज़र्रा उतारी, फिर कमीज भी उतार दी और कमर तक बरहना हो गए। तब उन रूमियों ने उन्हें पहचाना जो बसरा में उन्हें इस हालत में लड़ते देख चुके थे, और वो ये भी देख चुके थे कि इस शख्स में जिन्नात जैसी फुर्ती और ताकत है, और हकीकत भी यही थी। ज़र्रार एक से ज्यादा आदमियों का मुकाबला करने की खुसूसी महारत रखते थे। ज़र्रार के मुकाबले में जो रूमी आए थे उनमें 2 सालार भी थे, एक तबरिया का और दूसरा अम्मान का हाकिम या अमीर था। बाकी भी कोई आम सिपाही नहीं थे, वो कमांदारों के रुतबे के थे। उन्होंने ज़र्रार को घेरे में लेने के लिए घोड़ों के रुख मोड़े। ज़र्रार ने अचानक घोड़े को एड़ लगाई और जब वो अम्मान के हाकिम के करीब से गुजर गए तो ये सालार अपने घोड़े की पीठ पर ही दोहरा हो गया, फिर घोड़े से लुढ़क कर नीचे जा पड़ा। ज़र्रार की तलवार उसके पहलू से उसके जिस्म में गहरी उतर गई थी। हैरानकुन फुर्ती से ज़र्रार का घोड़ा मुड़ा और एक और रूमी उनकी तलवार से कट कर गिरा। ज़र्रार ऐसी चाल चलते और ऐसा पैंतरा बदलते थे कि रूमी सवारों के 2-3 घोड़े आपस में टकरा जाते या एक दूसरे के आगे आ जाते। इस मौके से फायदा उठाकर ज़र्रार उनमें से एक को तलवार से काट जाते। कोई रूमी सवार गिरता था तो मुसलमान बड़े जोश से नारे लगाते। ज़र्रार का ये आलम था कि जैसे उनमें माफाकुल फितरत ताकत आ गई हो। अपने मुकाबले में आने वाले रूमियों में से ज्यादातर को उन्होंने गिरा दिया था। उनमें से 1-2 ऐसे भी थे जिन्हें मोहलक जख्म नहीं आए थे, लेकिन वो दौड़ते घोड़ों के कदमों तले कुचले गए। 2 रूमी सवार भागकर अपने लश्कर में चले गए। ज़र्रार फातिहाना अंदाज से खून टपकाती तलवार को लहराते और रूमियों को ललकार रहे थे।
वो कहते, मैं सफेद चमड़ी वालों का कातिल हूँ। रूमियों, मेरी तलवार तुम्हारे खून की प्यासी है। मौरखों वाक़िदी इब्न हिशाम और तबरी ने लिखा है कि 10 रूमी सवार घोड़े दौड़ाते आगे आए। ये सब सालारी से जरा नीचे के ओहदों के रूमी थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब 10 सवारों को आगे आते देखा तो अपने मुहाफिज दस्ते में से उन्होंने 10 सवार मुंतखब किए और उन्हें आगे ले गए। रूमी सवार जर्रार की तरफ आ रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नारा लगाया, खुदा की कसम, जर्रार को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसके साथ उन्होंने अपने 10 सवारों को इशारा करके घोड़े को एड़ लगाई। 10 सवार उनके साथ गए। रूमी सवारों की नजरें जर्रार पर लगी हुई थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके सवार रूमी सवारों पर जा झपटे। जर्रार की तलवार भी हरकत में आ गई। रूमियों ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके सवारों की तेजी और तुंदी ने रूमियों की एक न चलने दी और सब कट गए। रूमी सालारों ने उसे अपनी बेइज्जती समझा और मजीद आदमियों को इनफिरादी मुकाबलों के लिए आगे भेजने लगे। जर्रार ने उनमें से 2-3 को हलाक कर दिया। मुकाबले के लिए आगे आने वाले हर रूमी के साथ जर्रार ही मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें पीछे बुला लिया और दूसरे मुजाहिदीन को बारी बारी आगे भेजा। हर मुकाबले में मुजाहिदीन फाते रहे। दोनों फौजों के दरमियान बहुत से रूमियों की लाशें पड़ी हुई थीं। मौरखों के मुताबिक ये मुकाबले कमोबेश 2 घंटे जारी रहे और सूरज उस मकाम पर आ गया जिस मकाम पर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते थे कि आ जाए तो हमला करेंगे। मुकाबलों के दौरान तीरंदाज और फलाखिन से पत्थर फेंकने वाले खामोश खड़े थे। मुकाबला अभी जारी था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमले का हुक्म दे दिया। ये आम किस्म का हमला था जिसे हल्ला या चार्ज कहा जाता है। उससे पहले रूमी तीरंदाज और फलाखिन बहुत बड़ी रुकावट थे। उन्हें खामोश देखकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमला किया था। हमला इतना जोरदार था और मुजाहिदीन में इतना कहर भरा हुआ था कि रूमी सालार आला वर्दान को कोई चाल चलने की मोहलत ही न मिली। वो अपने लश्कर के आगे खड़ा मुकाबले देख रहा था। उसने पीछे को भागकर अपनी जान बचाई। तवक्को ये थी कि वर्दान अपनी तादाद की इफरात के बलबूते पर अपने पहलुओं को आगे बढ़ाकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पहलुओं से आगे निकलने और अकब में आने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे इतना होश ही नहीं था। उसने अपने लश्कर को फैलाने की बजाय उसकी गहराई ज्यादा कर दी थी, यानी दस्तों के पीछे दस्ते रखे थे। उसकी ये तरतीब बड़ी अच्छी थी, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की चाल ने उसकी तरतीब को उसके लिए एक मसला बना दिया। मुसलमान दस्तों ने सामने से हमला किया तो रूमियों के अगले दस्ते पीछे हटने लगे। पिछले दस्तों को और पीछे होना पड़ा। फिर उनकी तरतीब गड़बड़ हो गई। मुसलमानों को इससे बहुत फायदा पहुंचा। ये बड़ा ही शदीद मार्का था और बड़ा ही खूंरेज। सूरज मगरिब की समत ढल गया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने महसूस किया कि मुजाहिदीन थक गए होंगे। उन्होंने मुजाहिदीन को मार्के से निकलने का हुक्म दिया। ऐसे लगा कि रूमी सालार भी यही चाहते थे। उन्होंने अपने दस्तों को पीछे हटाना बेहतर समझा। जब दोनों फौजें पीछे हटी तो पता चला कि रूमी हजारों की तादाद में मारे गए हैं और जख्मियों की तादाद भी बेशुमार है। उसके मुकाबले में मुसलमानों का नुकसान बहुत ही थोड़ा था। सूरज गुरूब होने को था, इसलिए दोनों में से कोई भी फौज हमला नहीं कर सकती थी। इस तरह पहले रोज की जंग खत्म हो गई। रात को दोनों फौजों के सालारों ने अपने अपने नायब सालारों वगैरह को बुलाया और अपने अपने नुकसानात का जायजा लेने लगे और अगली कार्रवाई के मुतल्लिक सोचने लगे। रूमियों के सालार आला वर्दान की कॉन्फ्रेंस में गर्मा गर्मी ज्यादा थी। वर्दान ने साफ कह दिया कि जंग की यही सूरत हाल रही जो आज हो गई थी और इस नतीजे का नतीजा क्या होगा। वर्दान के सालार कुबकुलार ने कहा, क्या मैंने पहले ही नहीं कह दिया था? मैं अब भी कहता हूँ कि और ज्यादा सोचो और वजह मालूम करो कि हर मैदान में फतह मुसलमानों की ही क्यों होती है और वही खूबी हमारी फौज में क्यों पैदा नहीं होती। आज की लड़ाई देखकर मुझे अपनी फतह मशकूक नजर आने लगी है। इस्लामिक शोर स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें।